My dear students, welcome to Mathological. In this session, we will be discussing questions of triangles. First question, in a right angled triangle ABC, the altitude AB is 5 cm and the base BC is 12 cm. P and Q are 2 points on BC such that the areas of triangle ABP, triangle ABQ and triangle ABC are in arithmetic progression. If the area of triangle ABC is 1.5 times the area of triangle ABP, तो length of PQ in centimeters क्या होगा? So there is a right angle triangle ABC, altitude AB is 5 cm and base is 12. So this is 5, this is 12 and this is right angle triangle. P and Q are 2 points such that area of ABP, ABQ and ABC are in arithmetic progression. Let us say this is P and this is Q. So area of triangles ABP and ABQ and ABC are in arithmetic progression. So since altitude is equal in all these triangles, ultimately area क्या होगा? Area of triangle ABP. This will be 1 by 2 into altitude, which is AB, into base, which is BP. Similarly, area of triangle ABQ. This will be 1 by 2 into altitude AB into base, which is BQ, and area of triangle ABC, which will be 1 by 2 into altitude AB into base, which is BC. So ratio of areas क्या आ जाएगा? Ultimately ratio of areas will depend on the base, length of bases. ठीक है? So areas का ratio will be in terms of bases का ratio BP is to BQ is to BC. और क्वेश्चन ये कह रहा है area of triangle ABC is 1.5 times the area of triangle ABP. Area of triangle ABC upon area of triangle ABP, this is 3 by 2 and this is basically BC upon BP. ठीक है, BC upon BP is 3 by 2. So BC हमारा कितना है? That is 12 सेंटीमीटर. 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो BP कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स हो जाएगा हमारा, क्योंकि 3 यूनिट्स अगर 12 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज 4 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट्स हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. ओके, 2 यूनिट्स विल बी 8 सेंटीमीटर. क्या है? क्लियर है? ओके, hence BP will be 8 centimeter. And question is saying areas of the triangles are in arithmetic progression. So if this is 8 or this total is 12, so since areas are in AP, so BP, BQ, BC, ये लेंस भी तो AP में होंगी. BP, BQ, BC are in arithmetic progression because length जो हमारा हाइट है वो तो सेम है, एल्टीट्यूड तो सेम है, तो BP, BQ, BC are in AP. BP is 8, BC is 12, तो BQ will be 10, यानी कि PQ will be equal to 2. This will be 2, this will also be 2. So length of PQ पूछ रहा क्वेश्चन, PQ will be equal to 2 only, 2 centimeter. This will be the answer. Okay, clear है? Next question. A triangle is drawn with its vertices on the circle C such that one of its sides is the diameter of C and the other two sides have their lengths in the ratio of A is to B. If the radius of the circle is R, then area of the triangle क्या होगा? So one of the sides is diameter of the circle. Okay. So since one of the sides is diameter, let us say AB is the diameter and triangle is ABC. So if AB is diameter, center will be O, that will be the midpoint of diameter or the hypotenuse of the triangle. ठीक है, और since AB is the diameter, तो definitely ACB, the circle, this is semicircle. ACB will be semicircle because AB diameter है, और semicircle में बनने वाला angle will always be 90 degrees, यानी कि angle ACB will be 90 degrees because it is an angle in a semicircle. So this will be a 90 degree angle. Okay, and if radius is R, so AO is R, OB is R, total हो गया AB is 2R, AB is equal to 2R.
and ratio of lengths of other two sides is A is to B. So we can assume that if AC is equal to AX, BC will be equal to BX. तभी तो ratio A is to B आ जाएगा. And apply Pythagoras theorem now. So AX whole squared या AC square plus BC square, this is equal to AB square. So AX whole squared plus BX whole squared, this is equal to 2R whole squared. So x square कॉमन आ जाएगा, x square into A square plus B square, this is equal to 4R square, and hence x square will be equal to 4R square upon A square plus B square. Okay, area of the triangle will be equal to 1 by 2 into base into height, यानी 1 by 2 into AX into BX. तो 1 by 2 AB x square. Now क्वेश्चन में A और B तो गिवन है, R भी गिवन है, बट x की वैल्यू पता नहीं है, x तो एज्यूम किया है हमने, तो x को रिप्लेस कर दो, x स्क्वायर है 4R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रिप्लेस कर दो, तो दिस विल बी 1 by 2 AB into 4R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2ABR स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. Is that clear? Option A will be the answer. 2ABR square upon A square plus B square. Clear है? Okay. ठीक है. So this will be the answer. Okay. ठीक है. Next question. Let triangle ABC be isosceles triangle such that AB and AC are of equal length. AD is the altitude from A on ABC and B is the altitude from B on AC. If AD and BE intersect at O such that angle AOB is equal to 105 degrees, then AD upon BE का वैल्यू क्या होगा? ABC is an isosceles triangle such that AB and AC are of equal length. AB is equal to AC and AD is the altitude from A and BE is the altitude from B. AD and B intersect at O, so this is point O, such that angle AOB is 105 degrees, this angle is 105. We need to find out AD upon BE. What will be the length of ratio of AD and BE? Okay. So if this angle is 105 degrees, this angle is 105 degrees, so this angle will be 75. This angle is right angle. So 90 plus 75 is 165. So this angle here, angle OBD will be 15 degrees. Isn't it so? This will be 15 degrees. Clear है? Okay. Similarly, this is 75, this is 105, so this angle is opposite angle, this will also be 105, vertically opposite angle. This is 105, this is 90, this is 90. So this angle will be 75, quadrilateral angle, the last angle, this will be 75. Okay. And since AB is equal to AC, so angle ABC will be equal to angle ACB. And angle ACB is 75 degrees, तो ABC भी 75 होगा, and if this is 15, तो this part will be 60 degrees. ठीक है, ऐसे ही फिर बाकी सारे एंगल भी फाइंड आउट कर लोगे. ओके, क्वेश्चन में हमें चाहिए AD अपॉन BE का वैल्यू. सो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, वन थिंग इज दैट वी कैन कंपेयर द एरियाज को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC कैन बी रिटन एज 1 by 2 इंटू बेस इंटू हाइट, और क्योंकि एल्टीट्यूड्स हैं AD और B यानी कि हाइट्स हैं, तो डेफिनेटली वन वे कुड बी 1 by 2 इंटू AD इंटू BC. सेकेंड वे कुड बी 1 by 2 इंटू BE इंटू बेस क्या होगा BE के केस में AC. सो AD अपॉन BE दिस विल बी इक्वल टू AC अपॉन BC. AD अपॉन BE विल बी इक्वल टू AC अपॉन BC. ओके, हाँ, एक और एंगल निकालना रह गया था, वो टॉप
का vertex angle. So if this angle is 75, angle B is 75, angle C is 75, so this angle will be 30 degrees. Okay. So now AD upon BE will be equal to AC upon BC, and in triangle ABC, if we apply sine rule in triangle ABC, तो sine rule क्या हो जाएगा, BC अपॉन एंगल A, BC अपॉन साइन है अपोजिट एंगल, ठीक है, तो BC अपॉन साइन ऑफ एंगल A यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्रीज, दिस विल बी इक्वल टू AC अपॉन साइन ऑफ 75 डिग्रीज. ओके, और साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 इज 1/2, तो AC बाई BC हमें निकालना है अल्टीमेटली, तो AC अपॉन BC दिस विल बी इक्वल टू साइन 75 अपॉन साइन 30, और साइन 30 इज 1/2, so this will be 2 times sin of 75 degrees, और AC upon BC हमारा AD by BE है, so this will be the answer 2 times sin 75 degrees, but ये ऑप्शन में गिवन नहीं है, so we can also write this as 2 times of sin of 90 minus 15 degrees, and sin of 90 minus theta is cos theta. Because sin and cos are complementary, ठीक है, complementary है, cosine is complementary sin, ठीक है, cosine, so ultimately complement है basically, तो in that case sin 90 minus theta becomes cos theta, यानी कि 2 times of cos 15 degrees will be our answer, which is option A. 2 sin 75 दिया होता तो वो आंसर हो जाता. क्या ये अप्रोच समझ में आता है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, अब ये देखो डिट्टो क्वेश्चन है जो 2022 में आया, और वही सेम क्वेश्चन 2023 में भी पूछ दिया. सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 105 डिग्रीज मेंशन है, इधर पे थीटा मेंशन है, और एक और एंगल 45 डिग्रीज मेंशन है. अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस एज सच. यहाँ भी AD बाई BE पूछा है, उधर भी AD बाई BE पूछा है, बोथ एल्टीट्यूड्स. सो triangle ABC altitudes AD and BE are drawn to the corresponding bases. If angle BAC is 45 degrees and angle ABC is theta, तो AD by BE का वैल्यू क्या होगा? एंगल BAC is 45 degrees. सबसे पहले AD और BE को ड्रॉप कर लेते हैं, बना लेते हैं. ओके, so angle BAC is 45 degrees and angle ABC is theta. Because ultimately same कहानी होगी, एरिया कंपेयर करोगे. So area of the triangle will be 1/2 into AD into BC. This is equal to 1/2 into BE into AC. So AD by BE will be equal to AC upon BC. Again apply the sine rule. तो AC upon sin theta. This will be equal to BC upon sin 45. So AC by BC will be equal to sin theta upon sin 45. And sin 45 क्या है? 1 upon root 2. So this is root 2 times sin theta. आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of each side of an equilateral triangle ABC is 3 cm. Let D be a point on BC such that the area of triangle ADC is half the area of triangle ABD. Then length of AD in centimeters क्या होगा? Length of each side of an equilateral triangle ABC is 3 cm. ABC is an equilateral triangle and each side is of the length 3 cm. D is a point on BC. Such that area of triangle ADC is half the area of triangle ABD. Okay, so
let us say this is point D. The area of triangle ADC, this is half the area of triangle ABD. अभी क्या होता है, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABD, इन बोथ दीज केसेस एल्टीट्यूड तो सेम है, हाइट तो सेम है दोनों के लिए, और अगर हाइट सेम है तो जो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो है दैट विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ द बेस. भाई हाइट दोनों के लिए सेम है, लेट अस एज्यूम एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. ओके, लेट अस से दिस इज x, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC विल बी इक्वल टू 1/2 into AX into DC, and area of triangle ABD will be equal to 1/2 into AX into BD. तो AX तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाने वाला है DC और BD. तो DC अपॉन BD इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, तुमको समझाने के लिए सब ऐसे लिखा है, अदरवाइज तो स्ट्रेट अवे क्लिक करना चाहिए कि रेशियो ऑफ द एरियाज है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरियाज हमारा रेशियो ऑफ बेसेस होगा, तो एरियाज का रेशियो है, ADC का एरिया हाफ है, यानी कि DC विल बी हाफ दैट ऑफ BD. तो BD और DC का रेशियो आ जाएगा 2:1, और टोटल क्योंकि 3 सेंटीमीटर है तो BD विल बी 2 सेंटीमीटर एंड DC विल बी 1 सेंटीमीटर. अदरवाइज BD और DC का रेशियो है 2:1 का. ठीक है, क्या है, क्लियर है? अब क्वेश्चन हमसे रेशियो तो नहीं पूछा है, क्वेश्चन तो पूछा है लेंथ ऑफ AD क्या होगा. लेंथ ऑफ AD क्या होगा? तो इफ वी हैव टू फाइंड आउट AD का लेंथ, AD इज नॉट द मीडियन, ना तो ये मीडियन है ना परपेंडिकुलर है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने ये जो AX ड्रॉप किया है, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दिस AX विच इज परपेंडिकुलर टू BC, बट सिंस दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल तो AX विल आल्सो बी अ मीडियन, मीडियन भी होगा. एंड इफ AX इज मीडियन तो BX विल बी इक्वल टू XC, यानी कि BX विल बी 1.5, XD विल बी 0.5, XD विल बी 0.5, और AX की वैल्यू भी आ जाएगी बिकॉज एल्टीट्यूड क्या होगा, इफ साइड लेंथ इज A, एल्टीट्यूड विल बी √3a/2, सो AX विल बी इक्वल टू 3√3/2. नाउ फोकस ऑन ट्रायंगल AXD. तो AX की लेंथ पता है, XD की लेंथ पता है, AD निकल आएगा. AD स्क्वायर इन ट्रायंगल AXD, AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस XD स्क्वायर. सो AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AX स्क्वायर विच इज 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस XD इज 1/2 होल स्क्वायर. तो दिस विल बी 3 3 9 3 27/4 प्लस 1/4 विच इज 28/4 which is equal to 7. AD square is 7, so AD will be equal to square root of 7. And that will be the answer. Square root of 7, option A will be the answer. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. रूट 7 आंसर हो जाएगा. Isn't it so? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Two ships are approaching a port along straight routes at constant speeds. Initially, the two ships and the port formed an equilateral triangle with sides of length 24 km. When the slower ship traveled 8 km, the triangle formed by the new positions of the two ships and the port became right angled. When the faster ship reaches the port, the distance in kilometer between the other ship and the port क्या होगा at that time? So there are two ships that are approaching a port and along the straight routes at constant speeds. Initially, the two ships and the port formed an equilateral triangle. Okay. ठीक है. तो initially let us say these are the ships. Okay. These are the ships and this is the port. So they are forming an equilateral triangle, which implies that all sides are equal with sides of length 24 km. So all these distances are 24 km. This is initial situation. When the slower ship traveled 8 km, the triangle formed by the new positions of two ships and the port became right angled. So slower ship has traveled 8 kilometers. ठीक है, तो let us say this is the slower ship and this is the faster ship. So slower ship has traveled 8 kilometers. So let us say this is the point, new point. ठीक है, so initially
इस पॉइंट पे था, नो दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द स्लोअर शिप। तो अगर स्लोअर शिप ने 8 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो डेफिनेटली फास्टर शिप ने इससे ज़्यादा ट्रैवल किया होगा, इससे ज़्यादा ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो लेट अस से दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हमें नहीं पता कितनी है, बट डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, दिस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन 8 किलोमीटर and this will be a new triangle. And question is also saying that this is a right angle triangle. Okay, right angle triangle. अब अच्छा एक बात बताओ कि इनिशियली एंगल्स हमारे थे 60, सारे एंगल 60 थे। तो दिस एंगल वाज 60, दिस एंगल वाज 60, दिस एंगल वाज 60। और क्योंकि पोर्ट अभी भी उसी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं तो ये जो एंगल है हमारा, दिस एंगल विल स्टिल बी 60। ठीक है, लेट अस से इनिशियली था ए बी सी एंड नाउ दिस इज पी, दिस इज क्यू। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, ये तो सेम ही है, 60 है, isn't it so? और अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो विच एंगल विल बी 90? 90 डिग्री कौन सा एंगल होगा? डेफिनेटली जिस शिप ने ज्यादा फास्ट ट्रैवल किया है, उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वहां पे द एंगल विल बी स्टीपर, यानी कि दिस एंगल विल बी 90 एंड दिस एंगल विल बी लेस देन 60 ऑब्वियसली, तो 30 डिग्री का एंगल होगा। ओके, दिस डिस्टेंस इज 8, सो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 16। और अगर 30 60 90 का वाले ट्रायंगल तुम्हें क्लिक कर गया है, याद आ गया है, तो नाउ यू नो कि 30 के सामने वाला साइड इज हाफ दैट ऑफ 90 के सामने वाला साइड। दिस इज द हाईएस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इज 16, 30 के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? हाफ दैट ऑफ 16, यानी कि दिस विल बी 8, दिस विल बी 8 एंड इफ दिस इज 8, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फास्टर शिप कितना होगा? एपी, एपी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फास्टर शिप। Isn't it so? और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने? 8 इज द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो दिस विल बी 24 माइनस 8 विच इज 16 किलोमीटर। कौन सा 8 हमने सब्ट्रैक्ट किया? बीपी। ठीक है, बिकॉज बीपी इज द रिमेनिंग डिस्टेंस। 16 किलोमीटर ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 16 किलोमीटर। तो फास्टर शिप और स्लोअर शिप में कंपैरिजन देखो, when faster ship has traveled, when slower ship has traveled 8 kilometers distance, faster ship has traveled double the distance 16 kilometers। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है when the faster ship reaches the port, distance between the other ship and the port क्या होगा? तो फास्टर शिप को और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना रहेगा? 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर ट्रैवल करेगा फास्टर शिप जितने टाइम में, उतने टाइम में स्लोअर शिप ट्रैवल करेगा 4 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कर चुका होगा। टोटल ट्रैवल करना था 24, तो 24 ट्रैवल करना था, 12 ट्रैवल कर चुका है। तो नाउ एट द फाइनल पोजिशन द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द पोर्ट, ठीक है, लेट अस से दिस पॉइंट इज टी फाइनली, तो दिस बीटी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 24 माइनस 12 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose the medians BD and CE of a triangle ABC intersect at a point O. If area of triangle ABC is 108 square centimeter, then area of the triangle EOD in square centimeter क्या होगा? In triangle ABC, medians BD and CE intersect at point O. BD and CE intersect at point O. So BD is the median, AD will be equal to CD, B or C is the median, so AE will be equal to B. And question asking about area of triangle EOD. So this is point O, triangle EOD. So we know in a triangle, medians are area bisectors. ठीक है, so if we draw all the medians, every median, then triangle is divided into 6 equal areas. 6 equal areas, isn't it so? So if area of the triangle is, total area is 12, let us say, so area of each part will be 2 units, 2 square units. Similarly, if we draw the medians up to the centroid, because O point क्या है? O is the centroid, intersection point of medians, so that is centroid. So if we draw
the medians up to the centroid. In that case, triangle is divided into 3 parts with equal areas. So if the total area is 12, these parts का area is equal to 4. ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो. These will be the 3 parts. Isn't it so? और अगर ये बात समझ में आ रही तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा. I mean सॉल्व कर लोगे फिर इजिली. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो इन दिस केस सिंस दिस पॉइंट इज ओ, तो एंगल बी, ट्राइंगल बीओसी का एरिया क्या होगा? टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दिस इज इक्वल टू 108. दिस इज 108. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी क्या होगा? दैट विल बी 1/3 हो जाएगा. सो दिस एरिया विल बी 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. Similarly, this area of triangle DOC, that will be 1/6 area of triangle ABC. This area, this will also be 1/6 area of triangle ABC. Okay, and E and D are midpoints of AB and AC. E और D midpoints है AB और AC के. तो if E and D are midpoints, तो triangle AED and ABC similar होंगे. तो triangle AED will be similar to triangle ABC. Okay, और साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है? रेशियो ऑफ साइड्स इज 1/2, जस्ट हाफ है, बिकॉज AE अपॉन AB दैट इज 1/2. AE अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AC, दिस इज इक्वल टू 1/2. तो रेशियो ऑफ एरियाज क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन ABC विल बी 1/2 होल स्क्वायर, यानी 1/4. दिस एरिया विल बी 1/4. Area of this triangle will be 1/4 area of triangle ABC. Okay. So area of triangle AED will be 27. Area of triangle BOC will be 1/3. So 108/3 is 36. 1/6 for BOE 18. 1/6 for DOC 18. तो जो बचा हुआ एरिया है वो ट्राइंगल DOE का हो जाएगा और वही हमें निकालना है. So remaining area will be 108 minus 36 plus 18 plus 18 plus 27, तो 72 plus 27 minus 99. तो 108 minus 99 that is equal to 9 square units. तो आंसर आ जाएगा हमारा 9. आंसर will be equal to 9. क्या है पार्ट क्लियर? ठीक है. और कैलकुलेशन को सिंपल रखना होता, अभी भी सिंपल ही है कैलकुलेशन यहाँ पे, बट जस्ट इन केस कोई और डायग्राम होता, कुछ और फर्क होता, तो ऐसे भी सीधे सीधे कर सकते थे अपन. इफ टोटल एरिया इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, देन एरिया ऑफ triangle AED will be 1/4. So that will be 3 units. Area of triangle BOC will be 1/3, 4 units, and 2 units and 2 units. इनका एरिया आ जाएगा. टोटल एरिया कितना हो गया? 12 है. 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. 12 minus 4 plus 4 8 plus 3 11. So this area will be 1 unit. If 12 units is equal to 108, तो 1 unit कितना आ जाएगा हमारा? 1 unit is equal to 9. So 9 square units will be the answer. This will be the answer. Okay. Clear? Okay. आगे बढ़ते हैं. Next question. Let D and E be points on sides AB and AC respectively of a triangle ABC such that AD is to BD is equal to 2:1 and AE is to CE is equal to 2:3. If area of the triangle ADE is 8 square centimeter, then area of triangle ABC in square centimeter क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होगा? ओके. AB एंड AC पे D और E पॉइंट्स हैं सच दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू 2:1. AE अपॉन CE इज इक्वल टू 2:3. तो जब भी डायग्राम बनाओ ज्योमेट्री में, तो हमेशा ट्राई कि डायग्राम शुड बी एज मच एज पॉसिबल
टू द एक्चुअल, क्योंकि जितना एक्चुअल के आसपास होगा तो उतना तुम्हें एक एस्टिमेट भी लग जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए. Okay, so AD upon BD is 2:1, AE upon CE is 2:3. Area of the triangle ADE is 8 square centimeter. So area of the triangle ABC क्या होगा in square centimeter? Okay, so in triangle ADE and triangle ABC, angle A तो common है. Let us say this angle is theta. Area का ratio देख लेते हैं. Area of triangle ADE upon area of triangle ABC. सो एरिया ट्रायंगल एडी क्या हो जाएगा, एडी इंटू एई और इंक्लूड एंगल, तो 1/2 एडी एई इंटू साइन थीटा. इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू एबीसी के लिए एबी इंटू एसी इंक्लूड एंगल इज साइन थीटा. दिस विल बी एडी बाई एबी इंटू ए बाई ए सी. और ए डी बाई ए बी क्या गिवन है, ए डी बाई ए बी तो गिवन नहीं है, बट ए डी बाई ए बी क्या हो जाएगा, टोटल है 3 यूनिट्स तो 2/3. ए बाई ए सी 2/5 तो 4/15 आ गया एरिया का रेशियो, 4/15 आ गया. और हमें पता है कि ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ए बी सी दैट इज 4/15 और 4 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 यूनिट्स, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 15 इंटू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस विल बी द आंसर. ओके, ठीक है. यही सेम चीज ऐसे भी देख सकते थे कि जस्ट इन केस अगर हम कनेक्ट कर देते बी और ई को. ओके, नाउ बी एंड ई आर कनेक्टेड. नाउ फोकस ऑन ट्रायंगल ABE. सो इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ADE और ABE, इन दोनों का ट्रायंगल ADE और BDE, इन दोनों के केस में हाइट तो सेम है. ठीक है, हाइट इज सेम. ट्रायंगल ADE का और ट्रायंगल BDE का हाइट सेम है. बेस का रेशियो क्या है, 2:1. हाइट इज सेम, रेशियो ऑफ बेस इज 2:1. ट्रायंगल ADE का एरिया 8 स्क्वायर यूनिट्स है और बेस का रेशियो है 2:1. तो एरिया का भी रेशियो क्या होगा, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDE का रेशियो बेस इज 2:1, हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो भी 2:1 होगा. 2 यूनिट्स एरिया की वैल्यू 8 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी, यानी कि दिस एरिया विल बी इक्वल टू 4. नाउ टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE का टोटल एरिया कितना है, 8 + 4 12. और ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CBE पे फोकस करो. तो इन बोथ केसेस हाइट इज सेम, एल्टीट्यूड तो सेम होगा, हाइट सेम होगा, बट बेस में डिफरेंस है. बेस का रेशियो है 2:3, तो एरिया का रेशियो भी 2:3 होगा. तो एरिया का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 2:3. 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 12 है. एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है. 2 यूनिट्स की वैल्यू 12 है. मैग्नीफाइंग का तो कभी यूज ही नहीं किया, मैग्नीफाई हो जाता बढ़िया से. ओके, तो 2 यूनिट्स की वैल्यू 12 है और 3 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 12, दिस विल बी 18. टोटल एरिया आ जाएगा 12 + 18 दैट इज इक्वल टू 30. ओके, क्लियर है. थर्टी यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल BCA इज इक्वल टू 50 डिग्रीज. Angle BCA is 50 degrees. D and E are points on AB and AC respectively such that AD is equal to DE. If F is a point on BC such that BD is equal to DF, then angle FDE in degrees क्या होगा, एंगल FDE in degrees की वैल्यू क्या होगी. एंगल BCA 50 डिग्रीज है, D and E है पॉइंट्स ऑन AB and AC. ओके, A B C और एंगल गिवन है हमें BCA. तो एंगल BCA इज दिस एंगल इज 50 डिग्रीज. D and E are points on AB and AC respectively such that AD is equal to DE. So if this is point D, so AD is equal to DE. These two are equal. Then F is the point on BC such that BD is equal to DF.
So BD, this is equal to DF. And question asked about angle FDE. What will be angle FDE? Okay. ठीक है. So this angle is 50. So in triangle ADE, since AD is equal to D, triangle AD में AD is equal to D, so this angle, if this is alpha, this will also be alpha. Isn't it so? If that is the angle is alpha, this will also be alpha. Similarly, triangle BDF में BD is equal to DF. So if this angle is beta, this will also be beta. So this बचा हुआ angle in the triangle ADE, this will be 180 minus 2 alpha. This remaining angle in triangle BDF, this will be 180 minus 2 beta. Okay, तो क्या आ जाएगा एंगल FDE? एंगल FDE will be equal to 180 degree minus angle BDF plus angle ADE. So 180 minus 2 alpha plus 180 minus 2 beta. So 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 180 आ जाएगा. बट इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्रीज, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 50, दिस इज इक्वल टू 180. तो अल्फा प्लस बीटा इज 130 डिग्रीज. तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 130 माइनस 180. तो 260 माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्रीज. आंसर आ जाएगा 80 डिग्रीज. ऑप्शन सी. ओके, ये तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक कन्वेंशन अप्रोच. अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो वी नो फॉर श्योर कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है कि एंगल BCA इज इक्वल 50 डिग्रीज, और कोई भी कंडीशन इसके अलावा गिवन ही नहीं है. तो इसके अलावा हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा भी शेप ले सकता है, और आंसर क्योंकि सारे केसेस में सेम आ रहा है तो दैट इंप्लाइज कि आंसर हमारा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द ट्रायंगल एक्सेप्ट एंगल ACB शुड बी इक्वल टू 50 डिग्रीज. एज लॉन्ग एज एंगल ACB इज 50 डिग्रीज तो हमारा जो आंसर है वो सिर्फ से एंगल ACB पे डिपेंड कर रहा है. तो बाकी कुछ भी तुम ट्रायंगल में चेंज करो उसकी वजह से तुम्हारा आंसर चेंज नहीं होगा. एज लॉन्ग एज AD इज इक्वल टू D एंड BD इज इक्वल टू DF. इजंट इट सो? तो अगर ये बात सर्टेन है तो हम अल्फा और बीटा की कोई भी वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ अल्फा और बीटा में सॉल्व करने के हम इनकी कुछ भी वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं. जब कर सकते हैं तो कर लेते हैं. क्यों एग्जाम में अननेसेसरली इतना टाइम वेस्ट करोगे? ठीक है, स्ट्रेट अवे वैल्यूज एज्यूम करो, आगे बढ़ो. सो यू नो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F. दिस एंगल इज 50. ओके, तो बचे हुए दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया? 130 आ गया. इफ वन एंगल इज 50 तो बचे हुए दोनों एंगल्स का सम है 130. तो लेट्स अज्यूम दिस एंगल 65, दोनों को इक्वल एज्यूम कर लो. दिस इज 65, दिस इज आल्सो 65, एंड इफ दिस इज 65 दिस विल आल्सो बी 65. So 130 आ गया. So this angle will be 50. Similarly, this is 65. This will also be 65. So this angle will be 50. And if these two angles are 50 plus 100, total 180 है, so this will be equal to 80 degrees only. तो फट से आंसर आ जाएगा तुम्हारा, बिकॉज आंसर डिपेंडेंट ही नहीं है. अब तुम 65 के बजाय एक को 60 एक को 70 मान लो, आंसर तब भी सेम आएगा. ठीक है, एज लॉन्ग एज तुम्हारा सम 130 है, तुम वैल्यूज कुछ भी एज्यूम करो, आंसर तब भी सेम आएगा. ठीक है, तो तुम आंसर ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आंसर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स एज लॉन्ग एज द अदर प्रॉपर्टीज आर केप्ट कंसिस्टेंट. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमें आंसर निकालने के लिए पूरा मेथड करने का, सॉल्व करने का इस तरह जरूरत नहीं है. स्ट्रेट अवे वैल्यूज एज्यूम कर सकते हो, इक्वल एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट हमेशा ये कॉशियस जरूर रहना है, पहले सोचना है कि यहाँ पे आंसर हमारा डिपेंड करता है कि नहीं करता है, बिकॉज ऑब्वियसली नहीं करता है. ठीक है, दैट इज वाई हमने इस अप्रोच से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. ओके, ठीक है, कहीं भी अप्लाई नहीं कर दोगे, ये ध्यान रखना. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कुछ और कंडीशन है और वहाँ पे एंगल्स पे मैटर करेगा, बाकी एंगल्स पे डिपेंड करेगा आंसर, तो फिर कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते. ठीक है, कहाँ पे एज्यूम करना है ये भी हमें सीखना ही है, ये भी समझ में आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. From an interior point of an equilateral triangle, perpendiculars are drawn on all three sides. The sum of the lengths of the three perpendiculars is S. Then area of the triangle क्या होगा? What will be area of the triangle? तो ट्रायंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है.
1 सेकेंड। ओके, सो देखो, एक इंटीरियर पॉइंट है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन ऑल द 3 साइड्स। लेट अस से दिस इज द पॉइंट, दिस इज दैट पॉइंट, पॉइंट इज P, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन ऑल द 3 साइड्स। ठीक है, ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और फिर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 3 परपेंडिकुलर्स इज S, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? लेट अस से दिस परपेंडिकुलर ऑन AB एंड BC एंड CA, तो लेंथ हमारी है A, B एंड C। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सो हमें गिवन है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कैपिटल S। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड लेंथ्स आर इक्वल, all side lengths are equal. So area of the triangle ABC, this will be equal to area of triangle ABP plus area of triangle ACP plus area of triangle BCP. So area of triangle ABC will be 1/2, नहीं ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3/4, अगर साइड लेंथ एज्यूम कर लें, जैसे साइड लेंथ इज इक्वल टू x, लेट अस से साइड लेंथ इज इक्वल टू x। ओके, एक बार लास्ट में प्रॉपर्टी भी एक बार रिकॉल कर लेंगे, जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बट अभी फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो जाएगा, बट पहले इसको इजीली सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व करते हैं। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिंस दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस विल बी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी 1/2 इंटू x इंटू C, तो 1/2 इंटू CX प्लस ट्रायंगल ACP का एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू BX, और ट्रायंगल BCP का एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू AX। सो √3/4 x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू x। 2 से कैंसिल आउट हुआ 2, x स्क्वायर और x है यहाँ पे, तो x को कैंसिल करो, एक पावर कम हो जाएगा, तो √3 टाइम्स x इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C विच इज इक्वल टू S, तो √3 टाइम्स x इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C विच इज S। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू S अपॉन √3, S अपॉन √3, तो एरिया विल बी इक्वल टू √3/4 इंटू x स्क्वायर यानी कि इंटू S/√3 इंटू S/√3। सो S स्क्वायर, एक सेकेंड 2 ये बच गया था, इस 2 को तो रखना चाहिए था ना, √3x/2 था S, तो x विल बी 2S/√3। सो S स्क्वायर by √3 will be the answer. Option A. Option A will be the answer in this case. Clear? ठीक है, हाँ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो डिस्कस करना था वो ये था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी 1/2 इंटू x इंटू हाइट एल्टीट्यूड। ठीक है, तो 1/2 इंटू x इंटू h विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू x, और यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा जैसे ही कंपेयर करोगे इसको और एरिया को। सो यहाँ से 1/2 इंटू x तो कैंसिल आउट हो गया, तो h इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में फ्रॉम एनी इंटीरियर पॉइंट the sum of the length of 3 perpendiculars is always equal to altitude of the triangle। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रहनी चाहिए। सो दिस S is the length of the altitude of the triangle। ठीक है, और जैसे अगर ये बात याद रहा तो फिर तो कुछ भी करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बिकॉज S is the altitude का लेंथ, और अगर S altitude का लेंथ है तो फिर वहां से हमें, बिकॉज altitude का लेंथ क्या होता क्या है, दिस H इज इक्वल टू √3/2 इंटू A, या फिर इस केस में क्योंकि हमने x एज्यूम किया तो √3/2 इंटू x कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू H, और यही वैल्यू इक्वल टू S है। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, साइड लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 2S/√3, और करंटली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC मीडियंस AD एंड BE आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हैव लेंथ्स 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC क्या होगा? तो मीडियंस आर परपेंडिकुलर, AD एंड BE आर परपेंडिकुलर, और जिस पॉइंट में मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं 2:1 के रेशियो में एक दूसरे को ब्रेक करती हैं।
Okay, so this is AD, this is BE and they are perpendicular, 2:1 में ब्रेक करती है. So if this is point O, तो AD 2:1 में ब्रेक होगा. टोटल लेंथ है AD का 12, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 4. सिमिलरली फॉर BE, और 2:1 का रेशियो कैसे आता है, तुम काउंट करते हो हमेशा वर्टेक्स से 2:1. ठीक है, तो सिमिलरली फॉर BE टोटल लेंथ है 9, 6 और 3 में ब्रेक होगा. दिस पार्ट विल बी 6, दिस पार्ट विल बी 3. अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है, किसी एक पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लो. ठीक है, सो दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा, दिस विल बी 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. और जरा सा भी इस डायग्राम से कंफ्यूजन हो रहा हो तो बगल में एक डायग्राम अपना ड्रॉ कर लो. वो क्या है, सेंट्रॉइड ही तो है. ठीक है, सो दिस विल बी 1/3. AOB बनाया हमने, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, 1/3 होगा. ठीक है, 1/3 होगा. सिमिलरली दिस एरिया विल बी 1/6. अगर इसकी जरूरत पड़ती, हमें कोई एक निकालना है, उससे सॉल्व हो जाएगा. बट दिस विल बी 1/6, isn't it so? बिकॉज ये वाला पोर्शन है. दिस विल बी 1/6, दिस विल बी 1/3. ओके, तो 1/3 वाला एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो दिस एरिया विल बी 1/2 इंटू 6 इंटू 8. दिस इज 1/2 इंटू 6 इंटू 8. So that is 24. So 24 square units is 1/3 of the area of triangle ABC. तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा 72. ओके, क्लियर है, इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट ABC be a right angle triangle with hypotenuse BC of length 20 cm. If AP is perpendicular on BC, then maximum possible length of AP क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ AP क्या होगा? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, हाइपोटेन्यूज है BC, तो एंगल A इज द राइट एंगल. हाइपोटेन्यूज का लेंथ है 20. AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC. सो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ AP विल बी व्हाट? अगेन एरियाज को कंपेयर कर लो. लेट अस से B के सामने साइड B है और C के सामने वाला साइड C है. दिस साइड इज C, दिस साइड इज B, और हाइपोटेन्यूज तो हमें 20 गिवन ही है. ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, this is equal to 400. This is equal to 400. This is first property. Then area of triangle ABC, this will be 1/2 into base into height, यानी 1/2 into B into C. और this can also be written as 1/2 into base. अगर हम BC assume करें तो 1/2 into AP into BC. AP into BC. So AP will be equal to B इंटू C अपॉन BC, और BC कितना है 20 है, तो डिवाइड बाई 20. सो AP इज B इंटू C बाई 20. और हमें मैक्सिमाइज करना है AP को, और अगर AP को मैक्सिमाइज करना है तो किसको मैक्सिमाइज करोगे? 20 तो कांस्टेंट है, तो B इंटू C को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. B इंटू C को मैक्सिमाइज करना है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कांस्टेंट है, तो B इंटू C को मैक्सिमाइज कैसे करोगे? AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा दो, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर C स्क्वायर विच इज BC. ठीक है, सो यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा दैट BC इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना है 400/2, यानी कि B इंटू C इज लेस देन इक्वल टू 200, लेस देन इक्वल टू 200. और AP हमारा B इंटू C बाई 20 है. सो BC इज लेस देन इक्वल टू 200, तो BC बाई 20 विल बी लेस देन इक्वल टू 200/20. सो दैट इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि AP इज लेस देन इक्वल टू 10. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AP विल इक्वल टू 10. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. और मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? व्हेन B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर. AP इज इक्वल टू 10 व्हेन B इज इक्वल टू C, यानी कि B स्क्वायर हो जाएगा 200, B विल बी रूट 200, यानी कि 10√2. क्वेश्चन में AP का लेंथ पूछा है. ठीक है, B और C का लेंथ हमारा 10√2 होगा, तब AP विल बी इक्वल टू 10. तो आंसर हमारा 10 है. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अच्छा एक और अप्रोच देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का. एक और अप्रोच देख लेते हैं. देखो, सिंस ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज BC हमारा लेंथ 20 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो हम एक ऐसे केस में सर्कल का सेमी सर्कल बना के प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बिकॉज एनी एंगल इज सेमी सर्कल इज अ 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल. तो BC
को डायमीटर मान लेते हैं सर्कल का, ओके, एंड लेंथ BC का 20 है तो BO विल बी 10, OC विल ऑल्सो बी 10 एंड ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. हमें क्या मैक्सिमाइज करना है? लेंथ ऑफ AP. So let's say this is AO and this is AP. ठीक है, AO is also radius, so this will also be 10. And now in this triangle, AP will always be less than or equal to AO. Equal to कब होगा? जब A point will be exactly in the middle. In that case, AO and AP will be equal. Isn't it so? तो AP will always be less than or equal to AO. यानी कि AP will always be less than or equal to 10. तो कंस्ट्रक्शन से भी हमें दिख रहा है कि AP इज लेस देन इक्वल टू 10. मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? AP का इक्वल टू 10 आएगा. तो AP का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10 और यही आंसर है, ऑप्शन ए. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. अदरवाइज क्योंकि AP एक परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन अदर केसेस. ठीक है, तो AP विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू AO. बस जब हमारा A विल बी एग्जैक्टली एट द सेंटर, सेंटर पे नहीं, एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द सेमी सर्कल, सो इन दैट केस AP will be maximum and that will be equal to 10. Otherwise it will always be less than 10. Okay, ठीक है. अगला क्वेश्चन. Given an equilateral triangle T1 with side length 24 cm, a second triangle T2 is formed by joining the midpoints of the sides of T1. Then a third triangle T3 is formed by joining the midpoints and so on. इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है ऐसे ही. सबसे पहले T1 T2 बना लेते हैं थोड़ा सा. So this is triangle T1 और साइड लेंथ है 24 एंड देन वी आर ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इफ यू आर ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स, सो डेफिनेटली अगर टोटल लेंथ हमारा 24 है, इफ दिस लेंथ इज 24, तो दिस लेंथ हियर दिस विल बी 12, दिस विल बी 12, सो ऑल साइड लेंथ हियर विल बी 12, जस्ट हाफ हो जाएगा. फिर से तुम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो अभी साइड लेंथ कितना हो जाएगा? 6 और 6 हो जाएगा और फिर फर्दर रिड्यूस होता रहेगा, फिर 3 हो जाएगा. तो हर बार साइलेंस विल बी इक्वल टू हाफ. इजंट इट सो? T1 के लिए साइलेंस है 24, T2 में आ जाएगा साइलेंस 12, T3 में आ जाएगा 6, T4 में आ जाएगा 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एरिया का हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सम ऑफ एरियाज ऑफ इनफाइनेटली मेनी सच ट्रायंगल्स क्या होगा? तो सम ऑफ एरियाज क्या आ जाएगा? T1 सिंस ऑल दीज आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सो एरिया विल बी इक्वल टू √3/4 A². ओके, so sum of areas, this will be equal to √3/4 into 24 square plus 12 square plus 6 square plus 3 square and so on. So √3/4 के साथ में 24 square को भी कॉमन ले लो. So inside bracket will be 1 square plus 1/2 square plus 1/4 square plus 1/8 square and so on. So तो इनफाइनाइट GP बन गया अपना, इनफाइनाइट GP. और कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो इज 1/2 स्क्वायर यानी 1/4. सो आउटसाइड द ब्रैकेट दिस इज √3/4 इंटू 24 स्क्वायर यानी 576/2. दिस इज 190 नहीं 576/2 या फिर 12 स्क्वायर कर दोगे तो 144 √3. √3 इंटू 144 इंटू दिस विल बी A upon 1 minus R यानी 1 square which is 1 upon 1 minus 1/4. So this will be 4/3 into 144 √3. So sum of areas आ जाएगा 48 into 4 192 √3. 192 √3 centimeter square. This will be the answer. Option D. क्लियर है? ओके, ठीक है, आंसर आ जाएगा 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन अ ट्रायंगल ABC, a circle with diameter BC is drawn intersecting AB and AC at points P and Q respectively. If the lengths of AB, AC and CP are 30, 25 and 20 centimeter respectively, then length of BQ क्या होगा? What will be length of BQ? ओके, करना है फिर से वही काम, बनाना है डायग्राम. बनाओ. A, B, C. Now BC is the diameter जिससे कि सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. सो दिस विल बी द सर्कल, लेट अस से. ओके, सेमी सर्कल है, सो O विल द सेंटर और AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट्स P एंड Q. दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q.
एडिशनली गिवन क्या है हमें, लेंथ ऑफ ए बी ए सी एंड सी पी 30, 25 एंड 20। तो 30 है ए बी का लेंथ, 25 है ए सी का लेंथ एंड 20 लेंथ है फॉर सी पी। सी पी का लेंथ है 20 एंड क्वेश्चन आस्किंग अबाउट लेंथ ऑफ बी क्यू। ओके, नाउ सिंस बी सी इज द डायमीटर, तो एंगल बी पी सी is the angle made in a semicircle, so that will be a right angle triangle, right angle होगा। Similarly BQC will also be right angle, both these angles are 90 degrees, okay, both these angles are 90 degrees। So here is the triangle ABC can be written as equal to 1/2 into base into height, यानी 1/2 into CP into AB or 1/2 into BQ into AC. So BQ will be equal to CP into AB upon AC। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो CP which is 20, CP तो गिवन है 20, AB कितना है, AB है 30 डिवाइड बाई 25, 600/25, this is equal to 24, 24 centimeter will be the answer। BQ is equal to 24। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ ट्रायंगल ABC with sides of length 40, 25 and 35 feet, a triangular portion GBC is cut off where G is the centroid of ABC, the area of the remaining portion of triangle ABC क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है, तो बस एरिया निकालना है ट्रायंगल का और उसके बाद में सेंट्रॉइड से ही पोर्शन कट ऑफ किया है। So this is A, this is G, this is B, this is C, और a triangular portion GBC is cut off where G is the centroid, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। तो GBC का एरिया क्या होने वाला है, दिस एरिया विल बी 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो रिमेनिंग एरिया विल बी 2/3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लो, साइड्स गिवन है 40, 25, 35, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ओके, S क्या आ जाएगा, S विल बी इक्वल टू 40 प्लस 25 प्लस 35/2, तो 40 प्लस 60 100/2 50 आ गया, S इज इक्वल टू 50, तो एरिया विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50 इंटू 50 माइनस 40 विच इज 10, 50 माइनस 25 विच इज 25, 50 माइनस 35 विच इज 50, सो 25 बाहर आ गया, 5 बन के आ गया बाहर, 50 से बाहर लोगे 5 बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा 2, तो 2 इंटू 10, ठीक है, 20 इंटू 15 300, अगेन 10 बाहर आ जाएगा और बचेगा इनसाइड 3, तो दिस इज 250√3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 250√3 एंड हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेनिंग पोर्शन ABGC, ABGC जो पोर्शन बच गया है दैट एरिया ऑफ ABGC, this will be equal to 2/3 of area of triangle ABC, 2/3 into 250√3, 500√3/3, this will be 500 divided by √3, this will be the answer, option B will be the answer, 500 by √3 will be the answer। Okay, next question, let ABC be a right angled isosceles triangle with hypotenuse BC, let BQC be a semicircle away from A with diameter BC, let BPC be an arc of circle centered at A and lying between BC and BQC। If AB has length 6 cm, then the area in square centimeter of the region enclosed by BPC and BQC क्या होगा। ABC सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, और गिवन हमें क्या है, हाइपोटेन्यूज है BC, एंगल A इज राइट एंगल, BQC be a semicircle away from A with diameter BC, तो BC डायमीटर पे हमने फॉर्म किया है BQC। Okay, let us say this is Q. Then BPC be an arc of a circle centered at A, center of the circle at A, तो AB is the radius या फिर AC, because AB और AC दोनों ही इक्वल है, both are equal, so AB and AC are radius, और arc हमारा है BPC is the arc।
Okay. And then question I ask about, if AB has length 6 centimeter, AC is also 6 then, or area enclosed by BPC and BQC. So the area enclosed, which is this area between these two, this area we need to find out. Okay. ठीक है. So कैसे फाइंड आउट करेंगे? Since AB is 6, AC is 6, तो BC क्या आ जाएगा? BC will be 6 root 2. 6 root 2. Because this angle is 90. बचे हुए एंगल्स होंगे 45, 45. BC will be 6 root 2. And if BC is 6 root 2, so BO, which will be radius of the BQC, that will be 3 root 2. और BQC क्या है? एक सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ BQC सेमी सर्कल कितना होगा? दैट विल बी पाई r स्क्वायर बाई 2. तो पाई इंटू 3 रूट 2 स्क्वायर बाई 2, तो दैट इज 9 पाई. एरिया ऑफ BQC विल बी 9 पाई. एंड देन एरिया ऑफ BPC आर्क, ठीक है, इस पोर्शन का एरिया क्या होगा? पूरा एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ABPC, पहले ABPC का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो एरिया ऑफ ABPC क्या आ जाएगा? दिस इज क्वार्टर सर्कल. क्वार्टर सर्कल है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, क्वार्टर सर्कल है. तो दिस विल पाई r स्क्वायर बाई 4, और रेडियस क्या है हमारा? 6 है, तो पाई इंटू 6 स्क्वायर बाई 4. दिस इज ऑल्सो 9 पाई. एरिया ऑफ BQC इज ऑल्सो 9 पाई. एरिया ऑफ ABPC इज ऑल्सो 9 पाई. ओके, तो ABPC में से द एरिया ऑफ, एक सेकेंड, डिफरेंट कलर से करते हैं. इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट दिस एरिया, तो ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर अल्टीमेटली. एंड दिस एरिया, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABPC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. So this is 9 pi minus 1 by 2 into 6 into 6. So 9 pi minus 18. Okay. So area of this portion that we require, this will be equal to, total area क्या है? 9 pi है. So 9 pi of BQC, ठीक है, BQC का एरिया है 9 pi minus BOCP, ऐसा समझ लो, ठीक है. तो 9 pi minus, एक सेकेंड, 9 pi minus 9 pi minus 18. नाइन पाई से 9 पाई कैंसिल हो जाएगा, 18 बच जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा. 18 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी. 18 विल बी द आंसर. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट ABC be a right angle triangle with BC as the hypotenuse. Lengths of AB and AC are 15 and 20 kilometers respectively. The minimum possible time in minutes required to reach the hypotenuse from A at a speed of 30 km per hour. ABC is a very huge triangle. BC as the hypotenuse. So angle A is the right angle. Length of AB and AC are 15 and 20. AB is 15, AC is 20, तो BC कितना आ जाएगा? 25, 3, 4, 5 वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट 25 आ जाएगा. मिनिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम ए. मिनिमम पॉसिबल टाइम, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो टाइम कब मिनिमम होगा? इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तो टाइम कब मिनिमम होगा? टाइम विल बी मिनिमम व्हेन डिस्टेंस इज मिनिमम. टाइम तब मिनिमम होगा जब द डिस्टेंस इज मिनिमम, क्योंकि ए से हम कहीं पे भी जा सकते हैं. ए भी डिस्टेंस भी कवर कर सकते थे, AC भी कवर कर सकते थे, या बीच में भी किसी पॉइंट पे डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. मिनिमम पॉसिबल टाइम तब लगेगा व्हेन द डिस्टेंस इज मिनिमम, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है. और डिस्टेंस मिनिमम कब होगी? व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, तभी तो डिस्टेंस हमारा मिनिमम होगा. यानी कि वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन लाइन BC. ठीक है, लेट अस से दिस इज AP, तो AP इज परपेंडिकुलर टू BC. अगेन एरियाज को कंपेयर करके रिजल्ट निकालोगे तो क्या आएगा? AP विल बी इक्वल टू AB इंटू AC डिवाइडेड बाई BC. तो 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25. 15 into 4 by 5, 60 by 5, 12 kilometers will be the distance, minimum distance between point A and BC, side BC, hypotenuse BC. और स्पीड है 20, 30 का, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू
12/30 विच इज 2/5 आवर, मल्टीप्लाई बाई 60 तो मिनट्स में आ जाएगा 24 मिनट्स। minutes will be the answer. Clear? Okay, next question. Let P be an interior point of a right angled isosceles triangle ABC with hypotenuse AB. If the perpendicular distance of P from each of AB, BC and CA is 4 into root 2 minus 1 meters, then area of the triangle ABC क्या होगा? Area of the triangle ABC क्या होगा? Okay, that we have to find out. Area of triangle ABC क्या होगा? Okay. ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकंड डिस्टेंस गिवन है मीटर्स में, शायद सेंटीमीटर होगा, मीटर मेंशन हो गया होगा, कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में देख लेंगे इस छोटी सी चीज़ को। तो पी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। हाइपोटेन्यूज है AB, तो C इज द राइट एंगल एंड P इज एन इंटीरियर पॉइंट जहां से कि perpendicular distance of P from each of AB, BC and AC is 4 into root 2 minus 1. यानी कि perpendicular distances are equal. And can you identify if perpendicular distances from a point inside the triangle is equal? तो point क्या होगा? That point will be in center. Then that point will be in center because these distances are equal. अगर equal नहीं होते तो in center नहीं होता, but क्योंकि equal है तो ये in center होगा because all these distances will be in radius. This will be in radius, तभी तो इक्वल होगा। ठीक है, तभी तो इक्वल होगा। क्या क्लियर है? Because these will be in radius, that is why these distances are equal. Okay, clear है? So this is point P. And if these all distances are equal to in radius, तो in radius हमारा आ गया r is equal to 4 into root 2 minus 1. And area of a triangle is equal to in radius into same perimeter. Now let us say since this is a right angled isosceles triangle, so if we assume that AC is equal to A, BC is also equal to A, तो AB will be A root 2. तो सही perimeter क्या आ जाएगा? 2A plus A root 2 divided by 2. ठीक है, तो A into 2 plus root 2 by 2. Okay. A into 2 plus root 2 by 2. So area of the triangle will be 1 by 2 A square, base into height 1 by 2 A square, which is equal to R, which is 4 into root 2 minus 1. into S, which is 2A plus root 2 by 2, यानी कि 1 by 2 into 2 plus root 2 into A. अब A से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 by 2 से 1 by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो A विल बी इक्वल टू 4 into root 2 minus 1 into 2 plus root 2 में root 2 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा root 2 plus 1. तो दिस विल बी 4 into root 2 and root 2 minus 1 into root 2 plus 1 will be 1 only, so side length will be equal to 4 root 2. So area will be equal to 1 by 2 A square या A square by 2. So that will be 4 root 2 into 4 root 2 by 2, यानी कि 32 by 2 16. अब अगर हमारे इन रेडियस मीटर्स में था तो दिस विल बी इन मीटर्स. डिपेंड करेगा, अगर मीटर्स में गिवन था तो मीटर्स में होगा. क्वेश्चन पूछा है एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, मे बी मिसप्रिंट हो कि यहाँ पे सेंटीमीटर रहा हो और हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बट जस्ट इन केस अगर दिस इज इन मीटर्स एंड दिस एरिया इज इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लेकिन दिस विल बी 16 मीटर स्क्वायर है, सो 16 इंटू 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, जस्ट इन केस चांसेस आर कि ये मिसप्रिंट होगा, मिसटाइप होगा. ठीक है, अदरवाइज अगर मीटर्स में गिवन है था और स्क्वायर सेंटीमीटर में निकालना तो फिर एरिया विल बी 164 times 0 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो एक बार ये जो लास्ट में है ना मीटर सेंटीमीटर, ये चीज़ चेक कर लेना.
उस पर आंसर होगी, डिपेंड करेगा। अगर मीटर्स में ही पूछा होगा या फिर वहाँ सेंटीमीटर होगा तो फिर आंसर 16 होगा, अदरवाइज 1,60,000 होगा। ओके, ठीक है, इतना ही रखते हैं इस क्वेश्चन में। और आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आया होगा और कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ अप्रोचेस कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे एग्जाम में। और फिर भी कहीं डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट आउट दैट डाउट। और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल एंड गिव अ फीडबैक इन द कमेंट्स। चलो इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।